Hello and welcome to Judicial Services Platform. The topic of today's discussion is ex parte decree. Ex parte decree from the examination point of view is a very short and easy topic, but it is very basic for the स्टूडेंट्स ऑफ लॉ एंड फॉर द लॉयर्स एंड जजेस, इसलिए इसे जानना ज़रूरी है और इसे स्किप नहीं किया जा सकता. हावेवर इससे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और अ वेरी बेसिक 5 to 10 मार्क्स थियोरेटिकल क्वेश्चन और अ सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. So let's understand what an ex parte decree is. सबसे पहले डिक्री क्या है? डिक्री इज़ द ऑर्डरिंग पोर्शन ऑफ अ जजमेंट. जिस तरह से जजमेंट में दोनों पार्टीज़ का केस डिस्कस किया जाता है, एविडेंस डिस्कस होता है, फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं. एट द एंड ऑफ दिस जजमेंट एक ऑर्डर या आदेश लिखा हुआ आपको मिलेगा और नीचे 4-5 लाइन का या एक पैराग्राफ का ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट का बेसिक मैंडेट होता है. लाइक विद इन 1 month of the decree you have to pay 1 lakh rupees to the plaintiff. Now this is the decree. अब अगर ये डिक्री डिफेंडेंट की एब्सेंस में पास की गई है, when the summons had been duly served and the defendant did not appear before the court or the defendant could not appear before the court, in any case when the defendant was not present at the time of hearing and the court has proceeded ex parte और ex parte proceed करने के बाद जब जजमेंट और डिक्री का स्टेज आ जाता है तो इस डिक्री को ex parte डिक्री कहा जाता है. Now let's understand what are the implications of this ex parte decree. क्या ये ex parte decree null and void होती है, बेकार होती है? बिल्कुल नहीं. इम्प्लीकेशंस दो तरीके से समझे जा सकते हैं. अगर एक डिफ़ॉल्टिंग डिफेंडेंट है जिसे समन्स ड्यूली सर्व किए गए थे एंड स्टिल ही डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, मतलब ही हैज़ कमिटेड अ डिफ़ॉल्ट, इन दैट केस this decree will be as much operative, as much valid and legal and binding as any other bi-party decree is. Unless and until it is annulled by a decree, it is annulled unless and until it is set aside, this decree will have as much force as any other decree. इसका भी उसी तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाएगा जैसे नॉर्मल डिक्री का होता है और इसमें भी उतना ही फोर्स होगा. As for an innocent defendant, law has provided certain remedies to the innocent defendant. The basic remedy that has been provided for in law, however और भी remedies हैं जो हम लास्ट में टच अपॉन करेंगे. The basic remedy is setting aside of an ex parte decree. The setting aside has been provided for in Order 9 Rule 13. इसके अलावा भी कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं जो कि हम एंड में टच अपॉन करेंगे, बट वी विल डिस्कस Order 9 Rule 13 इन कंप्लीट डिटेल्स. दिस इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट ये जो रेमेडी है Order 9 Rule 13 के अंतर्गत जो रेमेडी सेटिंग असाइड की अवेलेबल है, दिस इज़ अवेलेबल ओनली टू द डिफेंडेंट फॉर हुज non-appearance the court had proceeded ex parte and the decree was pronounced ex parte. The other defendants who were present cannot apply under Order 9 Rule 13 for setting aside of the ex parte decree. अगर 2-3 defendants हैं, only that defendant who was not present and for whose default or for whose non-appearance the court had proceeded ex parte, only that defendant can make an application under Order 9 Rule 13. अब Order 9 Rule 13 में जो 2 grounds provided हैं वो हैं summons not duly served
or that the defendant was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing. Summons not duly served, ये क्या होगा? एक सम्मन क्या होता है? इट इज़ अ नोटिस दैट such and such case has been filed against you and you have to appear before the court on such and such date for hearing. अब अगर ये समन्स गलत तरीके से सर्विस कर दिया जाए, सपोज प्रोसेस सर्वर के साथ कल्यूजन करके एक गलत सर्विस की रिपोर्ट लगवा लेता है प्लेंटिफ, and on that basis the court had proceeded ex parte, the defendant can later on come and prove that this summon was actually not sufficiently not properly served. ऐसा हो सकता है कि समन्स के ऊपर एक सिग्नेचर है जो कि कहा जा रहा है कि डिफेंडेंट की सिग्नेचर है. द डिफेंडेंट कैन कम बिफोर द कोर्ट एंड से that this is not my signature, and the date and the time when this signature has been said to be given, at that time I was admitted in such and such hospital in another city. अगर ऐसा प्रूव किया जाता है तो ये ड्यू सर्विस नहीं थी, और ड्यू सर्विस अगर नहीं थी तो और एक्स पार्टी प्रोसीड करने का ऑर्डर भी प्रॉपर नहीं था, एंड देयरफॉर द होल डिक्री गेट्स like this thing goes, this is illegality in the service of the summons, and therefore service ड्यू नहीं है, ड्यूली सर्व्ड नहीं है, इसलिए इसे हम सेट असाइड कर सकते हैं. Now let's understand this. ऑर्डर 9 रूल 6 में प्रोवाइडेड है कंडीशन जब कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है. ये तब प्रोसीड कर सकता है जब प्लेंटिफ प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट that the summon has been duly served, and in spite of due service the defendant did not appear before the court, and in that case the court will make an order proceeding the case ex parte. अब अगर ये सर्विस ड्यू सर्विस नहीं थी and this is proved by the defendant before the court, then this decree will be set aside under order 9 rule 13. यहाँ पे प्रोविज़ो में ये चीज़ क्लियर की गई है that if it is only an irregularity in the service and the defendant had adequate notice of the date of hearing, और उसके पास sufficient time था कोर्ट में अपीयर करके आंसर करने के लिए प्लेंटिफ का क्लेम, तो केवल इरेगुलरिटी का सहारा लेकर इट कैन नॉट बी सेड दैट चूँकि इरेगुलर सर्विस थी देयरफॉर दिस डिक्री नीड्स टू बी सेट असाइड. दिस शुड बी एन इलीगैलिटी इन सर्विस एंड नॉट अ मियर इरेगुलरिटी इन द सर्विस. सेकेंड कंडीशन क्या था? ये कि the defendant was prevented by a cause of a sufficient nature from appearing before the court when the suit was called on for hearing. अब sufficient cause क्या होता है? Sufficient cause has not been defined in the code CPC. Sufficient cause को कहीं पे भी define नहीं किया गया है, but then as the word itself explains that this cause should be something which is sufficient in itself considering the facts and circumstances of the case. ये sufficient cause को courts ने in various pronouncements it has been held that this should be liberally construed. बहुत ज़्यादा strict नहीं होना चाहिए, liberal interpretation होना चाहिए, liberally देखा जाना चाहिए, unless the
the defendant's conduct is something which is equivalent to misconduct or gross negligence, जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कोर्ट को, it appears to the court that the defendant is actually using it as a delaying tactics and the defendant is not cooperative, he is actually trying to avoid and misuse the process of law. In that case इसे sufficient cause नहीं माना जाएगा. But then otherwise wherever it appears to be a bona fide mistake, in that case, okay, sufficient cause can be anything ranging from, like, अगर defendant बीमार था, he was seriously sick, he was hospitalized or he was sick in any case, ट्रेन कैंसिल हो गई थी, ट्रेन लेट हो गई थी, या किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी, या काउंसिल बीमार था, any such cause which can be said to be a good cause is actually sufficient cause. ठीक है. ऑर्डर 9 रूल 13 की जो एप्लीकेशन है ये 30 डेज़ का लिमिटेशन होता है. 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री ये एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है. और जब भी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी ऑर्डर 9 रूल 13 की, तो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाएगा. ऑपोजिट पार्टी, दैट इज़ द प्लेंटिफ, ही विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम बिफोर द कोर्ट एंड अपोज द एप्लीकेशन, और उसको सुनने के बाद ही ऑर्डर 9 रूल 13 का कोई ऑर्डर किया जाएगा. जब ऑर्डर कोर्ट करता है तो कंडीशंस इम्पोज कर सकता है, कॉस्ट इम्पोज कर सकता है, डिक्रिटल अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है. whatever seems appropriate to the court considering the facts and circumstances वो ऑर्डर कर सकते. एक peculiar क्वेश्चन तब अराइज करता है, एक सिचुएशन ये हो सकती है जहाँ पे 2-3 डिफेंडेंट्स थे एंड ओनली 1 or 2 वर नॉट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, और द एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड, जो ऑर्डर 9 रूल 13 की जो एप्लीकेशन है वो किसी एक ने, लेट्स सी द डिक्री वाज अगेंस्ट ABC and the application has been filed only by B and C. So in that case, will the decree be set aside against all of them or the decree will be set aside against only B and C? This needs to be understood well, क्योंकि अगर decree का nature ऐसा है that it cannot be set aside against only those defendants who have made an application under order 9 rule 13, the court may set it aside against all of them. मतलब अगर डिक्री जॉइंट एंड इनडिविजिबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के को पार्टनर्स के अगेंस्ट में है, ओके, और इट इज़ अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, इन दैट केस इट इज़ जॉइंट एंड इनडिविजिबल. और उस सिचुएशन में कि केवल एक के अगेंस्ट में या 2 के अगेंस्ट में सेट असाइड करना और दूसरे के अगेंस्ट में नहीं, विल मेक द डिक्री इटसेल्फ confusing situation हो जाएगी. Since it is joint, therefore it has to be set aside against all of them. Similarly, अगर inconsistent decrees हो जाती हैं, सपोज करिए A ने B, C और D से पैसे लिए थे, which was like and the suit is for recovery. Now if it was like if the decree is on the basis of a joint promissory note, अब अगर एक एप्लीकेंट जो ऑर्डर 9 रूल 13 में आता है वो ये प्रूव कर देता है दैट आई वो ऑलरेडी मेड दिस पेमेंट, और कोर्ट ने एक ऑलरेडी पेमेंट की डिक्री कर रखी है, तो मतलब जॉइंट
एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट में से किसी एक को पेमेंट का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया और दूसरी एक डिक्री में जहाँ पर डिफेंडेंट प्रूव कर देता है दैट आई हैव ऑलरेडी मेड दिस पेमेंट, वहाँ पर प्लेंटिफ का सूट रिजेक्ट हो गया, तो दिस विल अमाउंट टू इनकंसिस्टेंट डिक्रीज which cannot survive together, and therefore in this case also the decree will be set aside against all of them. एक सिमिलर सिचुएशन हो सकती है जहाँ सूट था फॉर the suit is where the suit is for cancellation of a sale deed. सपोज करिए सेल डीड थी इन फेवर ऑफ बी एंड सी एंड ए फाइल्स अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सेल डीड. अब अगर केवल सी ने सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल की है एंड इन द एक्स पार्टी डिक्री द सेल डीड हैज़ बीन सेट, कैंसिलेशन का डिक्री हो चुकी है. नाउ applicant is not getting a relief because the sale deed is in favor of both the parties B and C, and in favor as against one the court has ordered for cancellation of the sale deed and the other person comes to the court for setting aside of the decree. In that case also this decree has to be set aside as a whole. सिमिलर विल बी अ पोजीशन जहाँ पर सपोज करिए प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में जजमेंट पास हो गया है एंड जो श्योरिटी है वो आता है फॉर सेटिंग असाइड. In that case also, since the grounds for the decree are common to both the defendants, therefore this has to be set aside against all the defendants. इफेक्ट क्या होगा सेटिंग असाइड ऑफ अ डिक्री का? द सूट विल बी रिस्टोर्ड. सूट जहाँ पे था वहीं से फिर से डी नोवो सुना जाएगा. मतलब अगर सर्विस ऑफ समन्स की स्टेज से प्लेंटिफ नहीं आया था तो हम वहीं से फिर से स्टार्ट होगा. द एंटायर एविडेंस जो उसकी एब्सेंस में ली गई थी उस एविडेंस को अब नहीं पढ़ा जाएगा एंड द हियरिंग विल कमेंस अफ्रेश. अगर डिफेंडेंट ने ऑलरेडी एक अपील कर दी है, एक्स पार्टी जजमेंट एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी है और वो अपील डिसाइड हो जाती है, इन दैट केस एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 विल नॉट लाई अनलेस ऑफ कोर्स विड्रॉ कर ली गई हो अपील. अगर अपील विड्रॉ कर ली गई थी दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, बट अगर अपील डिसाइड कर दी जाती है तो ऑर्डर 9 रूल 13 का जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं किया जा सकता. The other remedies that are available to a defendant in case of an ex parte decree is that of appeal under सेक्शन 96(2). अपील फाइल कर सकता है डिफेंडेंट, क्योंकि जो एक्स पार्टी डिक्री है इट इज़ अ डिक्री अंडर ऑर्डर 2(2), आई एम सॉरी, अंडर सेक्शन 2(2) ये डिक्री है, देयरफॉर इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है. रिवीजन फाइल किया जा सकता है इन केस वेयर setting aside an order 9 रूल 13 का जो एप्लीकेशन है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है. अगर डिक्री सेट असाइड कर दी जाती है बाय दैट ऑर्डर, in that case it will amount to a case decided and therefore सेक्शन 115 में रिवीजन फाइल किया जा सकता है इसका. सिमिलरली रिव्यू भी फाइल किया जा सकता है जहाँ पर ऑर्डर 47 रूल 1 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं, वहाँ पर रिव्यू भी फाइल किया जा सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक सेपरेट सूट भी फाइल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड. जैसे कि मैंने
प्रीवियस एग्जाम्पल में कहा था कि प्रोसेस सर्वर से कल्यूजन करके फेक सिग्नेचर्स दिखाकर या इस तरीके का कोई फ्रॉड करके अगर किसी ने एक्स पार्टी डिक्री ऑब्टेन कर ली है, हावेवर दिस रेमेडी इज़ नॉट वेरी ऑफन यूज्ड इन कोर्ट्स, बट स्टिल ये एक रेमेडी है जो कि अवेलेबल है. सो दैट्स ऑल अबाउट एक्स पार्टी डिक्री. थैंक यू.